if you talk about this service level model, this model is preferred where the different cost factors are not known exactly. अभी तक ना अपन ने बहुत सारे कॉस्ट फैक्टर्स की बात की, जैसे अपन ने बात की अबाउट होल्डिंग कॉस्ट, शॉर्टेज कॉस्ट, ordering cost. Now these are very difficult to find out, and that's why we prefer this model. अपन को ना बहुत सारे कॉस्ट फैक्टर्स का अपन ने जो बात की उतना आसान है नहीं निकालना. और ये मॉडल की खासियत, अच्छी बात ये है कि इसको कहीं कोई कॉस्ट से मतलब नहीं. इट इज सिंपली बेस्ड अपॉन प्रोबेबिलिटी. बहुत सिंपल आप बोले सर्विस लेवल, मतलब प्रोबेबिलिटी को अपन यहाँ बोल रहे हैं सर्विस लेवल, प्रोबेबिलिटी को बोल रहे हैं अपन यहाँ पे सर्विस लेवल. अब सपोज फॉर एग्जाम्पल, अपन बात करें एग्जाम्पल की, we say कि our service level is 90%. Now what it means, अपना अगर सर्विस लेवल 90%, इसका मतलब ये है कि जो टोटल डिमांड आएगी ड्यूरिंग लीड टाइम, आउट ऑफ दैट 90% ऑफ द कस्टमर्स डिमांड विल बी फुलफिल्ड ऑन एवरेज. लीड टाइम पीरियड में जो टोटल डिमांड आएगी उसकी तकरीबन 90% डिमांड फुलफिल हो जाएगी विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी प्रॉब्लम. एंड ओनली 10% ऑफ द कस्टमर्स ऑर्डर विल बी रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ बीइंग स्टॉक आउट. दैट इज द मीनिंग ऑफ 90% सर्विस लेवल. 90% सर्विस लेवल का मतलब कि जो टोटल डिमांड आई उसकी तकरीबन 90% डिमांड फुलफिल हो जाएगी और सिर्फ 10% कस्टमर्स के ऑर्डर रिजेक्ट करने पड़ेंगे बिकॉज ऑफ बीइंग स्टॉक आउट. अब अगर अपन बोलते हैं सर्विस लेवल इज 95%, इसका क्या मतलब हुआ? आउट ऑफ द टोटल डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, ऑन एन एवरेज, नॉट एवरी टाइम, ऑन एन एवरेज 95% of the customers demand will be fulfilled without any delay, without any problem, and only near about 10% of the customers, 5% of the customers order will be rejected because of being stock out. So that is the meaning of 95% सर्विस लेवल. अच्छा, जितना ज्यादा सर्विस लेवल होगा ना उतना ही स्टॉक आउट होने के चांसेस कम होंगे, मतलब उतना ही ज्यादा आपको सेफ्टी स्टॉक भी रखना पड़ेगा. जितना ज्यादा सेफ्टी स्टॉक उतना ही स्टॉक आउट होने के चांसेस कम. So write for this model. We'll write for this model. This model is preferred. This model is preferred. This model is preferred where the different cost factors This model is preferred where the different cost factors are not known exactly. Are not known exactly. Full stop. This model is based upon probability theory. This model is based upon probability theory, and the amount of safety stock This model is based upon probability theory, and the amount of safety stock is kept according to the level of service management wants to achieve. Management wants to achieve. Management wants to achieve. See, this service level that is given by number of units supplied without delay out of the total number of units demanded during lead time. LT is for the lead time. It may be 0 to 1 in fraction, and in percentage it may be 0 to 100%.
लिख लीजिए, नोट इट डाउन। जो लीड टाइम पीरियड में टोटल डिमांड आ रही है उसमें से कितनी डिमांड फुलफिल हो पा रही है विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी प्रॉब्लम, वी कॉल सर्विस लेवल। तो सी इन फ्रैक्शन इट में भी 0 to 1 एंड इन परसेंटेज इट में भी 0 to 100%। याद रखिए लीड टाइम पीरियड में बताता क्या है कि ऑन एवरेज लीड टाइम पीरियड में टोटल जो डिमांड आ रही है उसमें से कितने कस्टमर को आप डिमांड फुलफिल कर पा रहे हैं विदाउट एनी डिले प्रॉब्लम, वी कॉल इट सर्विस लेवल। इसी के बाद लिख लेंगे फ्रॉम नेक्स्ट पैरा, व्हेन द डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम when the demand during lead time may be approximated by a normal distribution, when the demand during lead time may be approximated by a normal distribution with a certain average when the demand during lead time may be approximated by a normal distribution with a certain average ना, इन ब्रैकेट कर लेंगे x बार और म्यू, है ना। एवरेज विल डिनोट बाय x बार और म्यू, represented by normal distribution with a certain average in bracket x bar or mu and standard deviation in bracket sigma then reorder level is given by x bar plus z times sigma. Reorder level is given by x bar plus z times sigma. Where z into sigma is our safety stock here. When the demand during lead time may be approximated by a normal distribution with certain average in bracket x bar or mu, then reorder level is given by this one, ROL equals to x bar plus z times sigma. ना इसी के बाद लिख लेंगे where x bar is average demand during lead time, where x bar is the average demand during lead time. X bar is the average demand during lead time. एवरेज डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम x बार और म्यू से डिनोट करते हैं, इसको अपन कहते हैं एवरेज डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, दैट इज नथिंग बट LT इंटू डी, एवरेज लीड टाइम मल्टीप्लाइड बाय एवरेज डिमांड रेट। ध्यान रखना यहाँ पे डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक में थोड़ा सा फर्क है। वहां पे अपन सिंपली इसको बोलते थे डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम क्योंकि वहां फिक्स था, कांस्टेंट था, पर यहाँ प्रोबेबिलिस्टिक में वेरिएशन होता है, फ्लक्चुएशन होता है, और इसलिए इसको कहते हैं डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम। ध्यान रखना लीड टाइम पीरियड में कभी इससे ज्यादा भी डिमांड आएगी, कभी कम भी आएगी, ये एवरेज बता रहा है, ध्यान रखना ये दिस इज एवरेज, दैट इज एवरेज डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम। तो डिमांड कभी इससे ज्यादा भी होगी, कभी कम भी। देन x bar, that is average demand during lead time. Then sigma is standard deviation. Sigma is standard deviation. for the demand variation
standard deviation for the demand variation during lead time. Standard deviation for the demand variation during lead time. Demand variation during lead time. And Z is the standard normal variate. Z is standard normal variate, 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 whose value depend upon the service level required. Whose value depend upon the service level required. Now Z जो है constant की तरह है, that Z will be simply a constant based upon normal distribution. आपके लिए आपको इसका डायरेक्टली डाटा दिया होगा या टेबल दिया होगा. ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज मैंने लिखी हुई है Z की, और इनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है ना, दैट इज फॉर 95% सर्विस लेवल. कभी अगर कुछ ना मेंशन करे तो एटलीस्ट वी शुड गो फॉर 95% सर्विस लेवल. हमेशा याद रखिए 95% स्टैंडर्ड वैल्यू है, मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि कम से कम 95% सर्विस लेवल तो रहे. तो इसको तो जरूर याद रखिए ना, 95% सबसे इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल गिव फॉर द 95% सर्विस लेवल. नोट कर लीजिए, दीज आर द फ्यू स्टैंडर्ड वैल्यू, दे आर कांस्टेंट बेस्ड अपॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. अब देखिए, थोड़ा समझ लें इसको. पहले मैंने लिख लिया, सबने नोट कर लिया. ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 95%. अब थोड़ा इसको समझे क्या है. यहां पे अपन का ये अजम्पशन है कि द डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम दैट विल फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. दैट इज आवर अजम्पशन कि द डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम विल फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ये अपना अजम्पशन है. तो अपन का ये अजम्पशन है कि डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम दैट विल फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. दैट इज आवर अजम्पशन. अब पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि ऐसा अजम्पशन क्यों मान लिया. सबसे पहले आपके दिमाग में तो ये आएगा कि ऐसा अजम्पशन क्यों मान लिया. तो सी, आवर अजम्पशंस आर बेस्ड अपॉन आवर रियल लाइफ एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, डाटा कलेक्शन. जब अपन ने इसके ऑब्जर्वेशन लिए, डाटा कलेक्शन किया, ये देखा कि सबसे ज्यादा ये नॉर्मल को फॉलो कर रहा है, और इसीलिए अपना अजम्पशन है. तो दैट इज बेस्ड अपॉन आवर रियल लाइफ एक्सपीरियंस, डाटा कलेक्शन, ऑब्जर्वेशन. जब अपन ने ऑब्जर्वेशन लिया, डाटा कलेक्शन किया, देखा सबसे ज्यादा ये नॉर्मल को फॉलो कर रहा है. अच्छा, पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो अज्यूम करना ही था. दैट्स व्हाई वी हैव अज्यूम्ड इट टू बी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. हमेशा नहीं करेगा, पर मोस्ट ऑफ द टाइम दैट विल फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. दैट्स व्हाई दैट इज आवर अजम्पशन. तो याद रखना, बहुत बार, कई बार इंटरव्यू वगैरह में आपसे पूछ लेगा कि ऐसा अजम्पशन क्यों माना है ना. आगे अभी अपन जाएंगे तो क्वीइंग थ्योरी में अपन ने कस्टमर अराइवल पॉइजन माना हुआ है, सर्विस पैटर्न एक्सपोनेंशियल माना हुआ है. पर्ट सीपीएम में जाएंगे तो पर्ट में एक्टिविटी ड्यूरेशन को बीटा माना है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन को नॉर्मल माना है. बहुत सारे अजम्पशंस हैं. तो याद रखना, जो भी अपने अजम्पशंस है ना, रियल लाइफ एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, डाटा कलेक्शन पे बेस्ड होते हैं. जब अपन ने इसको स्टडी किया, ऑब्जर्वेशन लिया, रीडिंग ली, देखा ये कि सबसे ज्यादा ये नॉर्मल को फॉलो कर रहा है. हमेशा फॉलो नहीं करेगा. अगर आपसे सपोज पूछा कि 100 में 100 क्या ये नॉर्मल को फॉलो करेगा, तो बोलिए नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा. पर हाँ, 100 अगर ऑब्जर्वेशन लिया तो उसमें सबसे ज्यादा नॉर्मल को फॉलो करेगा. मतलब हो सकता है 100 में 64 टाइम्स ये नॉर्मल को फॉलो कर रहा है, 10 टाइम्स बाइनोमियल को, 4 टाइम्स पॉइजन को, या फिर और किसी डिस्ट्रीब्यूशन को. पर सबसे ज्यादा ये फॉलो करेगा नॉर्मल को. और पढ़ने के लिए कुछ तो अज्यूम करना था. दैट्स व्हाई दैट इज आवर अजम्पशन. तो याद रखना, जो भी अजम्पशन है अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, डाटा कलेक्शन पे बेस्ड है. अब देखें ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की खास बात क्या है. अब देखिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो खास बात है, इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल सिमेट्रिकल अराउंड मीन, है ना. मीन के अराउंड सिमेट्रिकल है. मतलब अगर सेंटर लाइन से इसको अपन दो पार्ट में कट करें तो फर्स्ट पार्ट विल बी एग्जैक्टली द मिरर इमेज ऑफ द अदर वन. दैट इज सिमेट्रिकल अराउंड मीन. मीन के अराउंड सेंटर लाइन पे कट करें दो पार्ट में, तो वन पार्ट विल बी एग्जैक्टली द मिरर इमेज ऑफ द अदर वन. तो दैट इज सिमेट्रिकल अराउंड मीन फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली, इट इज फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट. मतलब ये ब्लू लाइन व्हाइट लाइन को टच नहीं करेगी. दैट इज फ्रॉम इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट. एंड थर्ड वन, विच इज क्वाइट यूनिक अबाउट इट,
It is the only distribution which has got the mean, median and mode at one place. Here, यहीं पे mean भी है, यहीं पे mode भी है और यहीं पे median भी है. ये इकलौता डिस्ट्रीब्यूशन है बाबा, ये इकलौता डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें mean, median and mode all the three are at a single one place. बाकी कई डिस्ट्रीब्यूशन में ना अलग अलग हो सकता है. यहीं पे मीन मतलब एवरेज है, मीडियन मींस मिडिल टर्म, सेंटर वन. अगर मतलब डाटा दिए हैं उनको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, जो सबसे बीच का फंसता है उसको कहते हैं मीडियन. मोड मींस ऑब्जर्वेशन, ये देख रहे हैं हाइट, हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहीं पे, हाईएस्ट इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी यहीं पे. तो दैट इज क्वाइट यूनिक अबाउट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. मीन, मीडियन एंड मोड ऑल द थ्री विल बी एट अ सिंगल वन प्लेस. तो यहां भी अपना अजम्पशन है कि इट विल फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. अब थोड़ा समझें इसको क्या है. सपोज फॉर एग्जाम्पल, लेट एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, लेट अवर डेली कंजम्पशन इज लेट 20 यूनिट्स पर डे. ऑन एवरेज डेली 20 यूनिट्स कंज्यूम होती है एंड लेट लीड टाइम इज ऑफ 10 डे. लीड टाइम जो है वो 10 दिन का है. तो व्हाट विल बी द एवरेज डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, बताइए. व्हाट विल बी द एवरेज डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम. एक्स बार क्या आ जाएगा, LT into D 200. तो एक्स बार विल बी 200 यूनिट्स. ये देखिए, ये बताएगा एक्स बार 200. सबसे ज्यादा चांसेस ये हैं कि डिमांड 200 यूनिट्स की आ जाए, सबसे ज्यादा चांसेस. हाईएस्ट इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी इज ऑफ 200 यूनिट्स. लीड टाइम पीरियड में ना डिमांड कभी ज्यादा भी आ सकती है, पर सबसे ज्यादा चांसेस किसके बनते हैं, 200 के. हाईएस्ट इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी 200 की है. सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि डिमांड विल बी ऑफ 200 यूनिट्स. कभी से डिमांड कम भी आ सकती है, कभी ज्यादा भी आ सकती है, पर सबसे ज्यादा चांसेस किसके हैं, 200 के. क्लियर है. कभी से डिमांड कम भी आ सकती है, कभी ज्यादा भी, सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं 200 के. बस ये प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है. कभी डिमांड इससे कम भी आएगी, कभी ज्यादा भी आएगी, पर दोनों तरफ चांसेस बिल्कुल बराबर. सिमेट्रिकल अमाउंट मीन है ना. देखिए सिमेट्रिकल अमाउंट अभी लिखना मत बेटा, सिर्फ समझना. सिमेट्रिकल अमाउंट मीन का मतलब जैसे 200 माइनस 50 कितना होता है, 150. 200 माइनस 50 इज 150 एंड 200 प्लस 50 इज 250. दोनों के चांसेस बिल्कुल बराबर. जितने चांसेस 150 के होंगे एग्जैक्टली उतने ही 250 के भी होंगे, दोनों तरफ बराबर. देन 200 माइनस 100 विल बी 100 एंड 200 प्लस 100 विल बी 300. देखिए समझिए, सबसे ज्यादा ये जो हाइट है ना, ये इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी बता रही. इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का मतलब समझ रहे हैं. जैसे देख रहे हैं, 1 की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी 7% है, 2 की 18%, 3 की 31%, 4 की 40%. ये इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी, सॉरी ये तो क्यूमुलेटिव है, ये इंडिविजुअल इधर है, सॉरी ये इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है. 1 की 7%, 2 की 11%, 3 की 13%, 4 की 9%, 5 की 10%, ये इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है. वैसे यहां पे भी ये इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है, पर देख रहे हैं यहां से यहां तक इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी. लीड टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा चांसेस होंगे कि डिमांड 200 की आ जाए, सबसे ज्यादा. देख रहे हैं हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी पॉइंट यहीं पे आ रहा है, सबसे ज्यादा. पर डिमांड इससे कम भी आ सकती है, कभी ज्यादा भी. अच्छा, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी यहां तक बढ़ती चली जा रही है, फिर इसके बाद इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी कम होती चली जाएगी. अच्छा, इन सबका अगर अपन पूरा समेशन निकालें तो क्या आएगा, 1 और 100%. 1 और 100% देख रहे हैं, ये तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है. जब इन सबका समेशन निकाला क्यूमुलेटिव तो वो आया 1 और 100%. वैसे यहां पे भी है, पर यहां पे क्या था ना, स्कैटर्ड मैनर में है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है. पर यहां पे अगर अपन रखेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी यहां तक बढ़ती चली जाएगी और फिर उसके बाद इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी. अब जैसे देख रहे हैं 100 का, सपोज फॉर एग्जाम्पल 100 की प्रोबेबिलिटी है 0.01, 1%. तो 150 की इससे कुछ ज्यादा होगी, लेट 0.025, 2.5%. 200 की सबसे ज्यादा होगी, लेट 0.055, 5%. अब देखिए 150 और 250 ना सिमेट्रिकल अराउंड मीन है, -50 + 50. तो जितनी चांस 150 के होंगे एग्जैक्टली उतने हुए होंगे 250 के भी. इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी विल बी द सेम. फिर जितने चांसेस 100 के होंगे एग्जैक्टली द सेम चांसेस विल बी फॉर 300 ऑल्सो. सिमेट्रिकल अराउंड मीन है ना, 200 माइनस है, उधर 200 प्लस है, तो इसका 1% है, तो 300 का भी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी होगा 1%. क्लियर. तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी विल बी द सेम. समझ आ रहा है.
अब जैसे 100 का 1% तो 120 का इससे थोड़ा ज्यादा हो सकता है 1.2%, 140 का और ज्यादा मे बी 1.8%। तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे यहां तक बढ़ती चली जाएगी और फिर उसके बाद इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। अच्छा, इन सब का अगर अपन पूरा समेशन निकालें तो यहां से क्यूमुलेटिव निकालें हैं तो 0, 10, 20, 30, 40 सेंटर लाइन तक हाफ एग्जैक्टली इक्वल 50%, 60, 70, 80, 90 कंप्लीट 100। अंडरस्टैंड? अरे यस और नो? ग्राफ सबको समझ में आ गया कि नहीं? बड़ा इंपॉर्टेंट, पहले ग्राफ को समझ लीजिए। क्लियर? तो ग्राफ ये बता रहा है, इस एक्सिस पे बता रहा है कि डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम पीरियड में कितनी यूनिट्स की डिमांड आएगी, और ये हाइट जो है प्रोबेबिलिटी बता रही है। ये एक्सिस बता रहा है कि डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम पीरियड में कितनी कितनी यूनिट्स की डिमांड आएगी, और जो हाइट है उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी बता रही है। यहां से स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है, मैक्सिमम यहां फिर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी कम हो रही है। हाँ, क्यूमुलेटिव निकालेंगे तो पूरा कंप्लीट आएगा 100% और 1। करेक्ट? अब देखिए, ऑन एवरेज डिमांड 200 की है, कभी इससे ज्यादा भी आई है, कभी कम भी आई है। तो ऑन एवरेज डिमांड तो 200 की है, कभी इससे ज्यादा भी आई है, कभी कम। बट देखिए प्रॉब्लम कब होगी अपन को दिक्कत कब है, प्रॉब्लम कब है? व्हेन द एक्चुअल डिमांड इज मोर देन एवरेज और लेस देन एवरेज। बताइए प्रॉब्लम दिक्कत कब होगी? व्हेन द एक्चुअल डिमांड इज मोर देन एवरेज और लेस देन एवरेज। तो ऑन एवरेज डिमांड तो 200 की है, कभी इससे कम भी आती है, कभी ज्यादा। कम आएगी तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कब है? व्हेन द एक्चुअल डिमांड इज मोर देन एवरेज। और इसी के लिए अपन रखते हैं एक्स्ट्रा सरप्लस स्टॉक, व्हाट वी कॉल इट सेफ्टी स्टॉक। तो सी ऑन एवरेज डिमांड 200 है, कभी इससे कम भी आएगी, कभी ज्यादा भी। कम आएगी तो दिक्कत नहीं, दिक्कत तब है जब एक्चुअल डिमांड शुड बी मोर देन एवरेज, और इसी के लिए अपन रखेंगे एक्स्ट्रा सरप्लस स्टॉक, व्हाट वी कॉल इट सेफ्टी स्टॉक। अब सपोज फॉर एग्जांपल अपन ने सेफ्टी स्टॉक रख लिया 80 यूनिट्स का। सेफ्टी स्टॉक अपन ने 80 यूनिट्स रख लिया, तो ये अपना आ गया रीऑर्डर लेवल, एंड 200 प्लस 80 280, दैट विल बी अवर रीऑर्डर लेवल। मतलब जब अपने पास 280 यूनिट्स होगी ऑन हैंड, अपन ऑर्डर बुक करवा देंगे। ऑन एवरेज जब अपने पास 280 यूनिट्स है ना ऑन हैंड, अपन ऑर्डर हमेशा बुक करवा देंगे। अब बताइए, डिमांड 280 या उससे कम की आई तो क्या आप स्टॉक आउट होंगे? अरे नहीं होंगे ना भाई, आपके पास 280 यूनिट्स होती है, जब 280 यूनिट्स आपके हाथ में होती है अपन ऑर्डर बुक करा देते हैं। अब लीड टाइम पीरियड में 280 है, उससे कम कोई भी डिमांड आई अपन हैंडल कर लेंगे। तो जो ये पूरा एरिया अपन कवर कर लेंगे, देख रहे हैं ये वाला पूरा एरिया जो अपन कवर कर रहे हैं अप टू ROL, ये क्या बताएगा अपन को? ये बताएगा प्रोबेबिलिटी चांसेस की विल नॉट बी स्टॉक आउट ड्यूरिंग लीड टाइम, क्योंकि इसके बराबर या इससे कम कोई भी डिमांड आई अपन हैंडल कर लेंगे। अब सपोज 100% में लेट इट इज 94% एरिया कवर्ड अप, 94% एरिया अपन ने कवर कर लिया। इसी को अपन यहां कहते हैं सर्विस लेवल, इसी को अपन यहां कहेंगे सर्विस लेवल। तो 280 या उससे कम कोई भी डिमांड आई अपन हैंडल कर लेंगे, और इसी को यहां कहते हैं अपन सर्विस लेवल। बहुत सिंपल में बता रहा है, प्रोबेबिलिटी चांसेस की विल नॉट बी स्टॉक आउट ड्यूरिंग लीड टाइम। तो अगर देखिए 280 या उससे कम कोई भी डिमांड आई, मतलब चाहे 100 की आए, 140, 160, 189, 200, 220, 245, 280, ऑल द डिमांड वी शुड बी एबल टू हैंडल आउट। ये जो पूरा एरिया कवर कर लेते हैं, इसी को यहां कहते हैं सर्विस लेवल, और ये बताता है प्रोबेबिलिटी चांसेस की विल नॉट बी स्टॉक आउट ड्यूरिंग लीड टाइम। पर बताइए अभी भी क्या चांसेस है कि अपन लीड टाइम पीरियड में स्टॉक आउट हो जाए? बताइए अभी भी क्या चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है कि वी विल बी स्टॉक आउट ड्यूरिंग लीड टाइम? अपन भी क्या चांसेस प्रोबेबिलिटी है कि अपन लीड टाइम पीरियड में स्टॉक आउट हो जाए? ये वाला एरिया जो बच गया ना 6%, देखिए अगर 280 से ऊपर डिमांड आ गई, 290, 300, 310, 320, स्टिल वी कैन स्टॉक आउट। तो ये वाला जो एरिया बच गया ना, ये बता रहा है प्रोबेबिलिटी चांसेस की अभी भी अपन स्टॉक आउट हो सकते हैं। तो अगर लीड टाइम पीरियड में इससे ऊपर कोई डिमांड आ गई तो अभी भी अपन स्टॉक आउट हो जाएंगे।
अब यहीं पे देखिए, अगर अपन सेफ्टी स्टॉक कम कर दें, सेफ्टी स्टॉक अगर अपन 50 यूनिट्स का कम कर दें 250 तक, तो देख रहे हैं स्टॉक आउट होने के चांसेस कम हो जाएंगे, और स्टॉक आउट होने के चांसेस प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। प्रोबेबिलिटी की स्टॉक आउट ना हो कम हो जाएगी, क्योंकि ये वाला एरिया फिर स्टॉक आउट का बताएगा चांसेस। और अगर अपन सेफ्टी स्टॉक 100 यूनिट कर दें तो यहां तक के एरिया कवर कर लेंगे, तो अपन का सर्विस लेवल बढ़ जाएगा। मतलब प्रोबेबिलिटी कि यू विल नॉट बी स्टॉक आउट इन ड्यूरिंग लीड टाइम विल बी मोर, और स्टॉक आउट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। क्लियर है सभी को? वेरी गुड। बना लीजिए, फिगर बना ले, फिगर बना लीजिए बेटा। मीन, मीडियन, मोड, ये देखिए, ये मीन होता है, यहीं पे मीडियन होता है, और यहीं मोड होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। ये खास बात है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन, मोड एक ही जगह पे होता है। मीन मतलब एवरेज, मोड मीन्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीडियंस मीन द मिडिल टर्म। बाकी जगह अलग अलग मिलेंगे आपको। जो हाइट है ना वो मोड, मोड मीन्स हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, फ्रीक्वेंसी, ऑकरेंस। तो जो हाइट है वो मोड बता रहा है। मीडियन मीन मिडिल टर्म, मिडिल टर्म दैट इज मीडियन। और मीन तो सबको पता ही है, एवरेज, सम ऑफ ऑल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लिख लिया सबने? देखिए, ये जो है ना, ये अपना फर्स्ट सर्विस लेवल मॉडल था। फर्स्ट यूक्यू मॉडल याद है? स्मॉल डी वाज द डिमांड रेट, रीऑर्डर लेवल, एलटी इनटू डी, ये लीड टाइम था एलटी। इसी पे अगर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट करें, इसी पे ही अगर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट आउट करें, सेम यही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे प्लॉट करें, तो देखिए बता क्या रहा है ये? बता रहा है कि ऑन एवरेज डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम इज एलटी इनटू डी। ये लीड टाइम में डिमांड रेट, तो ये एलटी इनटू डी, ऑन एवरेज लीड टाइम एलटी इनटू डी ये है, जिसको अपन यहाँ एक्स बार से डिनोट किया है। अच्छा, डिमांड कभी इससे कम आएगी और कभी ज्यादा भी। कम आएगी तो दिक्कत नहीं, दिक्कत होगी जब ज्यादा आ जाए, और जब ज्यादा आ जाए उसी के लिए अपन रखते हैं एक्स्ट्रा सरप्लस स्टॉक, व्हाट वी कॉल इट सेफ्टी स्टॉक। सपोज ये अपन ने एक्स्ट्रा सरप्लस स्टॉक रख लिया, अब उस फिगर में देख रहे हैं आप, ये रीऑर्डर लेवल लिखा हुआ, आरओएल इसको लिखा हुआ है। बताइए क्या सही है? आरओएल कौन सा सही है, येलो वाला या व्हाइट कलर वाला? आरओएल बताइए। है ना, इस फिगर में मैंने ये आरओएल लिखा है, आरओएल ये सही है या ये सही है? बताइए बताइए कौन सा सही है, येलो और व्हाइट? देखिए, रीऑर्डर लेवल इज एग्जैक्टली द क्वांटिटी ना, तो ये रीऑर्डर लेवल है ना ये रीऑर्डर लेवल है। रीऑर्डर लेवल, इनके बीच का जो गैप है ना, ये है आरओएल रीऑर्डर लेवल, ये है रीऑर्डर लेवल, द अमाउंट ऑफ इन्वेंटरी ऑन हैंड एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर।
जब अपन ऑर्डर कर रहे हैं अपने पास कितनी इन्वेंट्री है ऑन हैंड, वो है रीऑर्डर लेवल। यहां से यहां के बीच का गैप, तो चाहे आप 200 प्लस 80 करेंगे 280 होगा, या फिर 80 प्लस 200 कर दीजिए, वही भी सेम आने वाला है। इसलिए हर बुक में आपको ये रीऑर्डर लेवल दिखेगा, पर एग्जैक्टली इसका कहने का मतलब ये है कि यहां से यहां जो ये गैप है, दिस इज रीऑर्डर लेवल। हाँ, याद रखिए ये है रीऑर्डर लेवल। हाँ, पॉइंट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर अगर बात करें, जिस पॉइंट पे, जिस मोमेंट पे अपन ऑर्डर बुक करवाएंगे, वो ये है रीऑर्डर पॉइंट इज दिस वन। ये रीऑर्डर पॉइंट है, यहां अपन ऑर्डर बुक कराएंगे, पहले ये कंज्यूम हुआ, उसके बाद जरूरत पड़ी तो सेफ्टी स्टॉक भी कंज्यूम, और वो भी खत्म हुआ तो री स्टॉक आउट। और ये जो एरिया कवर कर रहे हैं, दिस एरिया इज अवर सर्विस लेवल। तो क्या होता है ना, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार ये सब खत्म होने के बाद कैसे रीऑर्डर लेवल आ रहा है। तो याद रखिए रीऑर्डर लेवल एग्जैक्टली यहां से यहां का गैप है, इसको कहते हैं रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल बताता क्या है, द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री ऑन हैंड एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर। जब अपन ऑर्डर बुक करा रहे हैं उस टाइम पे अपने पास कितनी इन्वेंट्री है ऑन हैंड, वी कॉल रीऑर्डर लेवल। तो चाहे यहां से यहां या फिर यहां से यहां काउंट करिए, वो बिल्कुल सेम आने वाला है।